Hello everyone, welcome to our channel, and today we are going to discuss the Inside Daily Current Affair of 15th of September 2020. So let's begin. The topic which we are going to cover today includes the from the mains point of view, who was Subramanyam Bhartiya, Megadatta project, what are the supplementary demand for grant, United Nation Convention of International Settlement Agreement resulting for mediation, NIMANS develop new Indian brain template, brain atlas, enemy properties, and from the prelims point of view, these three topics we are going to cover. So let's begin. The first topic which we are going to discuss is from the paper 1 part, and particularly the topic which we are going to cover is from the syllabus subpoint Indian culture, which cover the salient aspect of art, form, literature and architecture from ancient to the modern time. So first news is, who was Subramanyam Bhartiyar? So Subramanyam Bhartiyar, he was a person who born on 11 December 1882 in Itayampuram village of Tamil Nadu, and he was a great poet. Along with this, he was a freedom fighter, a social reformer from a Tamil Nadu, and he was known as a Mahakavi Bhartiyar, and his songs on nationalism and freedom of India has helped in the rally of masses supporting the Indian independence movement in Tamil Nadu. Along with this, he had various literature works such as the work includes the Kanamma Putta Nilavum Vaniniyam Katurum Panchali Sabhatam and Kuliya Pattu. Okay, and he has various publication related to various work, and he had published the sensational Swadesha Gitangal in the year of 1908, and has various contribution in the Indian field of art and literature, as he was a great poet. Okay, and he became the first poet whose work was recognized by the nationalist of the state government, by the state government. Okay, in the year 1949. So here is the photo of Subramanyam Bhartiya. Okay, and he, along with a great writer, great poet, he was a social reformer, and he was against the caste system, and according to him, he only believed that there is only two castes which include the men and women and nothing more than that. Okay, and he was also against the shastra uh, which used to consider that women are inferior in this status. Okay, and in this way he had various contribution in this field of art, and so in the poetry form and in the social issues. And regarding the next news from GS2 part, from the topic Parliament and State Legislature, structure, functioning, conduct of business, power and privilege, and issues arising out of this. So the news is of Megadatta project. So recently the Karnataka government is likely to take a designation to bring a pressure on the center to approve the construction of a Megadatta balancing reservoir that has been proposed to store water for a drinking purpose. Means in जो कर्नाटका गवर्नमेंट है, उन्होंने रिसेंटली एक डेजिग्नेशन लाया कि वो जो सेंटर पे उसमें प्रेशर डालने का उन्होंने सोचा है रिलेटेड टू द मेघदत्ता बैलेंसिंग रिजर्वायर जो प्रोजेक्ट है, जो मेन उसका पर्पस है फॉर स्टोरिंग अ ड्रिंकिंग पर्पस वाटर। एंड प्रेजेंट स्टेटस देखा जाए इस प्रोजेक्ट का, तो इस प्रोजेक्ट के लिए 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो कर्नाटका गवर्नमेंट
ने को अप्रूव किया था इन द ईयर 2017। एंड जो ये प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल यूनियन वाटर जो मिनिस्ट्री है उन्होंने अप्रूव कर दिया है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है उनका अप्रूवल का अभी तक कंफर्म नहीं है, इसलिए वो अवेटेड है, ठीक है, वेटिंग में है। उसके साथ साथ जो तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट। अभी हम देखते हैं कि ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ये जो कर्नाटका गवर्नमेंट का ये जो प्रोजेक्ट है इसके अगेंस्ट में क्यों है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अबाउट द मेकदत्ता डिस्प्यूट। अभी डिस्प्यूट ऐसा है कि जो मेकदत्ता जो प्लेस है इज़ लोकेटेड अलोंग द कावेरी इन कंकरपुरा तालुका ऑफ रामनगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। एंड जो कर्नाटका वांट्स अ रिजर्वायर अक्रॉस द कावेरी एट द मेकदत्ता टू मीट द बेंगलुरु वाटर प्रॉब्लम, ठीक है। जो भी वाटर क्राइसिस है बेंगलुरु में, उस प्रॉब्लम्स को मीट करने के लिए जो रिजर्वायर है वो मेघदूत में कंस्ट्रक्ट करने का कर्नाटका गवर्नमेंट का अप्रूवल प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ऐसे बोल रहा है कि जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उन्होंने प्रायर परमिशंस जो ली है उसमें उन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन डाले हैं। उसके साथ साथ वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि दैट द प्रोजेक्ट विल अफेक्ट द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम कावेरी टू द तमिलनाडु। अलॉन्ग विद दिस वो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था ऑन द कावेरी ट्रिब्यूनल रिलेटेड, तो वो भी कहीं ना कहीं वो वॉयलेट करेगा, ठीक है। तो रिसेंटली हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हैज़ नोटेड दैट एग्जिस्टिंग स्टोरेज इन कावेरी बेसिन ऑफ कर्नाटका शुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर अश्योरिंग वाटर रिलीज टू तमिलनाडु ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जून टू जनवरी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक फिगर में बहुत अच्छे से सारा इशू दिया गया है, मैं वो अभी समझाती हूँ। तो देखा जाए तो ये जो मेघदत्ता जहाँ पे वो रिजर्वायर का कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए सोचा है कर्नाटका गवर्नमेंट ने, जिसका अप्रूवल अब तक जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने अप्रूवल नहीं किया है। तो जो प्रोजेक्ट है वो तमिलनाडु क्यों डिस्प्यूट कर रहा है, क्योंकि हम जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो कर्नाटका और जो तमिलनाडु का पार्ट है इस यहाँ पे एकदम इसी पार्ट में जो मेघदत्ता है, जिसके वजह से जो कावेरी का फ्लो है वो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे अगर रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट हो गया तो वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली तमिलनाडु की जो फ्लो होता है कावेरी उसमें कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ला सकता है, ठीक है। इसके वजह से तमिलनाडु गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन ला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो तमिलनाडु वर्सेस आंध्र प्रदेश के रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं उनके रिलेटेड टू द वाटर प्रॉब्लम। तो देखा जाए कि 23 चेक डैम्स हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1990s एंड 2005 अक्रॉस पल्लार रिवर इन आंध्र प्रदेश। देखा जाए तो 23 चेक डैम्स का कंस्ट्रक्शन हुआ है इन इतने सालों के बीच में, और जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है हैज़ रेज द हाइट उन्होंने रेज की है 6 जो चेक डैम्स हैं उनकी हाइट रेज की है, ठीक है, टू डबल द स्टोरेज ऑफ वाटर, जिसके वजह से और उसके साथ साथ उन्होंने एक न्यू चेक डैम भी बिल्ड किया है, ठीक है। और इसका अफेक्ट कहीं ना कहीं तमिलनाडु के वाटर जो फ्लो होता है उसमें अफेक्ट किया है। जैसे कि जो चेक डैम की हाइट इंक्रीज़ की है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, तो जिसके वजह से वहाँ पे वाटर का स्टोरेज डबल हो गया है, और जिसके वजह से कहीं ना कहीं तमिलनाडु को वाटर का जो प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे हम इस फिगर में जैसे देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो डिस्प्यूट है वो क्यों हो सकता है, क्योंकि उनकी जो बाउंड्री है वो मतलब जॉइंट बाउंड्री है। इसके वजह से जो पानी फ्लो होता है वो दोनों जो स्टेट है वहाँ से फ्लो होता है, इसलिए वो डिस्प्यूट अराइज हुआ है। अभी देखा जाए तो तमिलनाडु वर्सेस केरला का केस, तो केरला हैज़ प्लान टू कंस्ट्रक्ट 6 चेक डैम्स अक्रॉस द इंटर स्टेट रिवर भवानी। जो भवानी रिवर है वो दोनों भी स्टेट से जो फ्लो होती है, ठीक है। तो जिसके वजह से और जो केरला गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो 6 चेक डैम्स बनाए। 2 हैज़ बीन कम्प्लीटेड, उनमें से 2 प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट हो गए हैं, और केरला सेज दैट द चेक डैम विल यूटिलाइज 6
TMC water awarded from a Bhavani basin by a Kaveri tribunal 10 year ago. ठीक है, तो वो 6 डैम्स रहने वाले हैं, जो चेक डैम्स कंस्ट्रक्ट करने वाले, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारा जो वाटर है वो यूटिलाइज करेंगे. ठीक है, और हाउ विल इट अफेक्ट द तमिलनाडु, अगर तमिलनाडु को कैसे अफेक्ट करेगा. जो फार्मर इन कोयम्बतूर, इडोर्स एंड तिरुपुर fear that a water flow will go down in Bhavani flowing into Tamil Nadu once the check dams are built on the Kerala side. अगर केरला साइड में अगर वो डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया तो उसके वजह से जो तमिलनाडु के जो फार्मर्स को वगैरह ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं उनके जो स्टेट्स में पानी का जो ये फ्लो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा. और देखा जाए तो तमिलनाडु और कर्नाटका का अभी डिस्प्यूट वही है कि मेघदत्ता प्रोजेक्ट के रिलेटेड वही इशू मैंने अभी जो डिस्कस किया था. और अभी देखते हैं कि रिगार्डिंग प्रीलिम्स हमें क्या याद रखना है कि जैसे यहाँ पे हमने कावेरी रिवर का डिस्कशन लिया है तो हम जानते हैं कि कावेरी रिवर के बारे में. ठीक है, तो रिवर राइज ऑन ब्रह्मागिरी हिल ऑफ अ वेस्टर्न घाट इन साउथ वेस्टर्न ऑफ कर्नाटका स्टेट. तो कावेरी रिवर का जो राइज है इज़ फ्रॉम अ ब्रह्मागिरी हिल एंड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट इन द साउथ वेस्टर्न ऑफ अ कर्नाटका स्टेट. और देखा जाए तो ये जो है कावेरी वो कवर करती है 3 स्टेट एंड द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी. ठीक है, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट कौन से है, वो एक तमिलनाडु है. ठीक है, उसके बाद कर्नाटका, केरला एंड द पुदुचेरी. ठीक है, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि उनकी की ट्रिब्यूटरीज जो है कावेरी के वो देखते हैं. हेमवती, ठीक है, ये की ट्रिब्यूटरीज देखते हैं कावेरी के. हेमवती, लक्ष्मणित्रा, कबानी, अमरावती, नौलिक एंड भवानी रिवर. ओके, तो ये जो है वो तमिलनाडु कावेरी के जो है ट्रिब्यूटरीज हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूज़ क्या है. नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रॉम द टॉपिक पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेज एंड द इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस. ठीक है, व्हाट आर द सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट. तो न्यूज़ है ऑन द टॉपिक ऑफ व्हाट इज़ द सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट. तो देखा जाए रिसेंटली the supplementary demand for grant is needed for the government expenditure over and above the amount for which parliamentary approval was already obtained during the budget session. तो जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट होता है वो जो बजट में मतलब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जो बजट में डिसाइड किया जाता है, उससे अगर कुछ अमाउंट ज़्यादा लग रहा हो या ओवर एंड अबव, तो जो अकाउंट करते हैं फ्रॉम द पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट. अगर उसके प्रोविज़न देखे जाए तो आर्टिकल 115 फॉर द सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट एंड आर्टिकल 116 फॉर वोट ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट. ठीक है, और ये जो ग्रांट रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया ऑन 1949. अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है. सो द सेंटर हैज़ सॉट द पार्लियामेंट अप्रूवल फॉर अ ग्रॉस एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 2.35 लाख करोड़ इंक्लूडिंग ₹20,000 crore for recapitalization of a public sector banks for 2020-21. दे आर द सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट. तो रिसेंटली जो सेंटर है वो कहीं पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना चाहता है फॉर द ग्रॉस एडिशनल जो एक्सपेंडिचर लग रहा है ऑफ 2.35 लाख करोड़ इंक्लूडिंग 20,000 करोड़ फॉर द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ अ पब्लिक सेक्टर बैंक. ठीक है, जो इसलिए जो इतनी अमाउंट जो दिया है यहाँ पे, ये जो अमाउंट है इतने करोड़ जो है उसके लिए जो सेंटर है वो पार्लियामेंट के लिए अप्रूवल चाहता है, पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहता है. ठीक है, अभी प्रोसीजर देखा जाए तो सप्लीमेंट्री ग्रांट जो अप्रूव करने के लिए, तो व्हेन दिस ग्रांट ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट फॉल शॉर्ट ऑफ अ रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेट इज प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर सप्लीमेंट्री और एडिशनल ग्रांट. तो ये ग्रांट जो पाने के लिए जो पार्लियामेंट को
एक अप्रूवल दिया जाता है। बिकॉज क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर ऑफ जो बजट में डिसाइड किया था उससे वो कहीं ना कहीं कम गिर रहा है, जो उस टाइम की जो इस टाइम की नीड है उसको फुलफ़िल करने के लिए, इसीलिए हमको पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक है। एंड दिस ग्रांट आर प्रेजेंटेड एंड पास बाय द पार्लियामेंट बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो ग्रांट रिलेटेड जो प्रोविज़न है उसको पाने के लिए उसको प्रेजेंट करना पड़ता है पार्लियामेंट में, और उसको पास भी करना पड़ता है पार्लियामेंट में बिफोर द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। हम जैसे जानते हैं फाइनेंशियल ईयर होता है स्टार्टिंग विथ द डेट 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, ये होता है फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद व्हेन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड एक्सेड द अप्रूव्ड ग्रांट ऑफ अ पार्लियामेंट, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रेजेंट अ डिमांड फॉर एक्सिस ग्रांट। तो फिर जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाता है जो अप्रूव ग्रांट है पार्लियामेंट के, तो उस टाइम पे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो प्रेजेंट करते हैं डिमांड फॉर एक्सिस ग्रांट, मतलब एक्सेस मतलब कुछ और अमाउंट ऑफ जो ज़्यादा जो ग्रांट है वो उसके लिए वो डिमांड करते हैं। और जो कैग होता है, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया ब्रिंग सच एक्सेस टू नोटिस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया होता है वो नोटिस में लाता है पार्लियामेंट को ये जो एक्सिस ग्रांट के रिलेटेड जो इशू करने वाले हैं, जो प्रेजेंट करने वाले हैं उसको जो पार्लियामेंट के सामने वो नोटिस में लाते हैं। इसके बाद जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है एग्जामिन्स द एक्सेस एंड गिव द रिकमेंडेशन टू द पार्लियामेंट। ठीक है, यूज टू एग्जामिन द होल एंड यूज टू गिव द रिकमेंडेशन टू द पार्लियामेंट, एंड द डिमांड फॉर द एक्सिस ग्रांट इज मेड आफ्टर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड एंड इज presented to the parliament after the end of a financial year in which the expenses were made। ठीक है। तो जो डिमांड होती है फॉर द एक्सिस ग्रांट के लिए इज़ मेड, वो कब बनाते हैं, जब एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर होता है वो पूरा हो गया, ख़त्म हो गया रहता है, और उसके बाद इट इज़ प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच द एक्सपेंसेस वेयर मेड। और बाकी दूसरे जो जैसे हमने यहाँ पे सप्लीमेंट्री ग्रांट के बारे में देखा, तो बाकी दूसरे टाइप के ग्रांट्स कौन से होते हैं, तो देखिए जो तो एडिशनल ग्रांट्स होते हैं। तो एडिशनल ग्रांट is guaranteed when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new services not allotted कंटम्पलेटेड इन द बजट फॉर दैट ईयर। एडिशनल ग्रांट मतलब अगर कुछ न्यू सर्विसेज का फॉर्मेशन हुआ तो, और वो जो है कुछ न्यू सर्विसेज का फॉर्म हुआ और वो जो बजट था उस फाइनेंशियल ईयर के इसमें एडिशनल मतलब वहाँ पे वो मेंशन ना हो, तो उसके लिए जो ग्रांट अप्रूव की जाती है उसको एडिशनल ग्रांट बोलते हैं। जो एक्सिस ग्रांट होती है, इट इज़ अ ग्रांट व्हेन द मनी हैज़ स्पेंड ऑन एनी सर्विसेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ अमाउंट guaranteed for that year. The demand for the excess grant are made after the expenditure has actually been incurred and after the financial year to which it relate has expired। ठीक है। एक्सेस ग्रांट मतलब अगर कोई एक्सपेंडिचर किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए अलॉट हुआ हो और उस एक्सपेंडिचर वो ख़त्म हो, उसको एक्सपेंडिचर के लिए एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मतलब और पैसे उस पर्टिकुलर काम के लिए खर्च हो जाते हैं, मतलब कुछ जो एक्सपेंडिचर अलॉट हुआ है उससे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, उस टाइम पे एक्सिस ग्रांट का प्रोविज़न होता है। उसके बाद एक्सेप्शनल ग्रांट उस टाइम पे होता है अगर विच फॉर्म नो पार्ट ऑफ अ करंट सर्विसेज ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर। एक्सेप्शनल ग्रांट मतलब कोई करंट सर्विसेज है उसको उस फाइनेंशियल ईयर में ऐड नहीं किया है, उस टाइम पे अगर वो कोई ग्रांट ऐड की है तो उसको एक्सेप्शनल ग्रांट बोलते हैं। ठीक है। टोकन ग्रांट, इट इज़ granted when fund to meet a proposed expenditure on a new services can be made available by reappropriation. A demand for a grant of a token sum may be submitted to the vote of a house and if the house assent to the demand, fund may be also made available। मतलब कोई भी जो प्रपोज एक्सपेंडिचर है उसमें अगर ही अप्रोप्रिएशन किया चाहे तो उस टाइम पे वो टोकन ग्रांट का अप्रूवल होता है, और हाउस से जो परमिशन हाउस के लिए वोट के लिए सबमिट किया जाता है, अगर हाउस ने असेंट दे दिया तो फंड भी उस पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए अलॉट हो जाता है। ठीक है।
उसके बाद देखते हैं फ्रॉम द टॉपिक बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड द एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट। तो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फॉर मेडिएशन फ्रॉम मेडिएशन। ओके, तो ये कन्वेंशनल केम इनटू फोर्स ऑन 12 सितंबर 2020। अभी इस कन्वेंशन की नीड क्यों थी? तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडोप्ट किया था द कन्वेंशन ऑन 20 दिसंबर 2018 एंड इट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 7 अगस्त 2019 इन सिंगापुर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो नेशनल जनरल असेंबली उन्होंने अडोप्ट किया था ये कन्वेंशन ऑन 2018 को अडोप्ट किया था और वो ओपन था सिग्नेचर के लिए, मतलब बाकी जो कंट्रीज है इसको ज्वाइन करना है ऑन 7 अगस्त 2019 को इन द सिंगापुर में। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन एज इट वाज फर्स्ट यूनियन ट्रीटी थी जो नेम थी आफ्टर द सिंगापुर। अभी की प्रोविज़न देखते हैं इस कन्वेंशन के। तो पहला प्रोविज़न है अप्लीकेबिलिटी। तो द कन्वेंशन विल अप्लाई टू इंटरनेशनल कमर्शियल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फॉर अ मेडिएशन। अगर किसी भी दो जो कंट्रीज़ है तो उनके बीच में अगर इंटरनेशनल कमर्शियल सेटलमेंट करना हो फॉर मेडिएशन तो ये कन्वेंशन अप्लाई होता है। और किसके लिए अप्लाई नहीं होता है? फॉर द एग्रीमेंट जो भी जुडिशियल रिलेटेड प्रोसीडिंग हो या कोर्ट रिलेटेड कोई जजमेंट हो या आर्बिटरी कोई अवार्ड हो, ठीक है, इन सारे जो केस में हो उसलिए अप्लाई नहीं होता। इसके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो डू नॉट अप्लाई इन केस ऑफ अ पर्सनल और फैमिली और हाउस होल्ड पर्पज रिलेटेड। ठीक है, जो हाउस होल्ड रिलेटेड या पर्सनल फैमिली रिलेटेड, फैमिली एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड या इस टाइप के जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है वो भी इस कन्वेंशन के लिए अप्लीकेबल नहीं है। द कोर्ट ऑफ contracting party will be accepted to handle the application either to enforce an international settlement agreement which fall within the scope of the convention or to allow the party to evoke the settlement agreement in order to prove that the matter has already been resolved in accordance with its rules of procedure and under the condition laid down in the convention। ठीक है, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हो तो वो जो ये एग्रीमेंट है उसको किस तरीके से वो हैंडल करेंगे, तो उनके हैंडलिंग में ही मतलब दैट पर्टिकुलर पार्टी तो वो एक्सपेक्ट कर सकती है कि वो खुद भी हैंडल कर सकते हैं द इंटरनेशनल, मतलब अगर उन्होंने इंटरनेशनल सेटलमेंट जो एग्रीमेंट है उनके स्कोप में जितने भी कन्वेंशन आते हैं उसके अकॉर्डिंग भी वो इन्फोर्स कर सकते हैं, वो फॉलो जो फर्दर प्रोसीजर होती है वो, नहीं तो वो एक इवोक भी कर सकती है जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है और प्रूव कर सकती है कि उनके जो कंट्री के बीच में जो मैटर था वो पहले से ही रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, एंड सिग्नेटरीज देखा जाए तो 53 सिग्नेटरीज है इस कन्वेंशन के, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना एंड ऑल्सो द यूएस। और इंडिया ने कब अप्रूव किया था? अप्रूव किया था जुलाई 2019 को। अब बेनिफिट क्या है इंडिया को? इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो देखें तो signing of this convention will boost the confidence of the investor and shall provide a positive signal to the foreign investor about Indian commitment to adhere to international practice on alternative dispute resolution। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो इंडिया को किस तरीके से बेनिफिट करेगा, वो बेनिफिट करेगा इन द वे इट हेल्प टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस, जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन देगा कि इंडिया की जो अल्टरनेटिव जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब कैसा है उनका, और इंडिया ने कितने अच्छे से मतलब कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर को है कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और पॉजिटिव साइन देगा फॉरेन इन्वेस्टर को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। उसके साथ साथ जो बिजनेस इन इंडिया एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड विल नाउ हैव अ ग्रेटर सर्टिनिटी इन रिजॉल्विंग क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट थ्रू अ मेडिएशन। ठीक है, इसके साथ साथ जो इंडिया में जो भी बिजनेसेस है उसके साथ साथ जो बाकी वर्ल्ड में भी जो इंडिया के जो बिजनेस है उसमें अगर कहीं डिस्प्यूट हुआ तो उसको प्रॉपरली हैंडल करने का, जो रिजॉल्व करने का जो मैकेनिज़्म है या प्रॉपर एक मीडिएशन से जो सॉल्व करने का एक जो है पॉजिटिव पॉइंट इस कन्वेंशन से हमको मिलेगा। ठीक है, अभी GS3 का पार्ट देखते हैं। GS3 में है फ्रॉम द टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें से है पहला टॉपिक है निमांस डेवलप अ न्यू इंडियन ब्रेन टेम्पलेट ब्रेन एटलास। ठीक है, तो न्यूज़
ऐसी हैं कि जो न्यूरो साइंटिस्ट है फ्रॉम निमान स्टडी ओवर 500 brain scan of Indian patient to develop a 5 set of Indian brain template and a brain atlas for 5 age grouping covering late childhood to a late अडल्टहुड, ठीक है, 6 to 60 ईयर। मतलब जो न्यूरो साइंटिस्ट है फ्रॉम निमान स्टडी, उन्होंने जो इंडिया के 500 ब्रेन को स्कैन किया है ऑफ इंडियन पेशेंट। क्यों स्कैन किया है उसको, उनको जो इंडियन ब्रेन का टेम्पलेट और एक ब्रेन एटलास डिज़ाइन करने के लिए, जो रहेगा विद इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 60। अभी इसका सिग्निफिकेंट क्या है, करंटली देखा जाए तो हम यूज़ कर रहे हैं मोटेरियल न्यूरोलॉजिक्स इंडेक्स टेम्पलेट। इनका जो टेम्पलेट है MNI टेम्पलेट हम यूज़ कर रहे हैं, जो बेस्ट है कॉशियन ब्रेन्स पे। और जो कॉशियन ब्रेन्स जो है वो ब्रेन स्कैनिंग हुई थी 152 हेल्दी ब्रेन स्कैनिंग फ्रॉम अ स्मॉल स्लाइस ऑफ अ सिटी पॉपुलेशन इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के पीपल्स से का जो हेल्दी जो 152 हेल्दी ब्रेन स्कैन हुए थे फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिकन पीपल। बट जो कॉशियन ब्रेन है वो ऐसा फाइंड हुआ है कि वो डिफरेंट है फ्रॉम द एशियन ब्रेन, ठीक है। बट इंडिया विल नाउ हैव, अगर जो ये जो न्यू टेम्पलेट जो डेवलप किया है निमेंस ने, तो उन्होंने जो टेम्पलेट डिज़ाइन किया है तो वो हमें हेल्प कहाँ पे करेगा, इट विल हेल्प टू मेज़र एन इंडियन ब्रेन। तो बेनिफिट ऑफ द इंडियन ब्रेन टेम्पलेट एंड एटलास, इसका जो बेनिफिट है तो देखा जाए तो फर्स्ट बेनिफिट है दैट इट विल प्रोवाइड मोर प्रिसाइज, एक बहुत प्रिसाइज जो रेफरेंस मैप रहेंगी ऑन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल पेशेंट विथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर्स एंड डिमेंटिया, ठीक है। तो एक प्रॉपरली जो मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, स्ट्रोक हो गया, इस टाइप के, तो इसके लिए एक प्रॉपर रेफरेंस मैप का जो है वो कहीं ना कहीं हमको उसके रेफरेंस के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ इट विल ऑल्सो हेल्प pull information from more useful in group studies of a human brain and psychological function, ठीक है। जो ह्यूमन ब्रेन और साइकोलॉजिकल फंक्शन की स्टडी करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस जो टेम्पलेट का कहीं ना कहीं उनको हेल्प होगा। उसके साथ साथ तो काफ़ी सारे जो डिसऑर्डर्स है, जैसे कि अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज़म, सब्सटेंस डिपेंडेंस, मूड डिसऑर्डर या सिनोफेरियन जो ये डिसऑर्डर्स है, इस टाइप के जो डिसऑर्डर्स को एक प्रॉपर उसको समझने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। इसके साथ जो न्यू पॉपुलेशन का मतलब जो न्यू एज ग्रुप है या जो ब्रेन रिलेटेड क्या डेवलपमेंट हुई है विद इन द एज ग्रुप, या उसका एक प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर दिया है ब्रेन डायग्राम टेम्पलेट का। उसके बाद दो नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम द टॉपिक रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड द नॉन स्टेट एक्टर इन क्रिएटिंग अ चैलेंज टू द इंटरनल सिक्योरिटी। तो देखते हैं एनिमी प्रॉपर्टी। तो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, द जो मेंबर है इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के टू द प्राइम मिनिस्टर हैज़ आस्क्ड द गवर्नमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट को पूछा है कि टू कंसीडर द सेलिंग ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी यूजुअली एट ओवर 1 लाख करोड़ टू टेक केयर ऑफ अ करंट एक्सपेंडिचर विच विल ड्रिवन ग्रोथ, ठीक है। जो एनिमी प्रॉपर्टी है देखा जाए तो इंडिया में ओवर 1 लाख करोड़ की एनिमी प्रॉपर्टी है। तो जो इकोनॉमिक एडवाइज़र है जो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं, तो उन्होंने गवर्नमेंट से उन्होंने गवर्नमेंट से पूछा है कि वो एनिमी प्रॉपर्टी को वो सेल करे या कर सकते हैं क्या। तो हम देखेंगे कि अभी एनिमी प्रॉपर्टी होती क्या है। तो द प्रॉपर्टी दैट वेयर लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल हु टुक अ सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। तो जो पीपल्स ने सिटीजनशिप ली है चाइना और पाकिस्तान की, तो उनका जो लेफ्ट ओवर प्रॉपर्टी है वो होती है एनिमी प्रॉपर्टी। देखा जाए तो देयर आर more than 9,000 such property left by the Pakistan national and 126 by the Chinese national, and overall जो maximum number of जो more number of total property है जो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश स्टेट में, उसके बाद आती है वेस्ट बंगाल एंड देन देर इज़ अ दिल्ली। द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रॉपर्टी जो चाइना नेशनल लेफ्ट की है वो मेघालय में, बाद में वेस्ट बंगाल में और बाद में
आसाम में, ठीक है। जो ये काउंट है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कौन सी स्टेट में कौन सी नेशनलिटी की जो प्रॉपर्टी ज़्यादा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं हु ओवरसी दिस प्रॉपर्टी। अभी इनके ऊपर कौन ये जो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज है एनिमी प्रॉपर्टी रिलेटेड वो कौन देखता है। तो अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल फ्रेम अंडर द Defense of India Act 1962, the government of India took over the properties and companies of those who took the Pakistani nationality। तो जिस पर्सन ने पाकिस्तानी नेशनलिटी ली हो तो उन सारे के जो प्रॉपर्टीज़ एंड कंपनीज रिलेटेड जो वर्क है वो जाता है सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उस सारे इसको पर्पस को लुक करता है। एंड इट इज़ अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल जो फ्रेम किया गया है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962। एंड दिस एनिमी प्रॉपर्टीज वेयर वेस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कस्टडी ऑफ अ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, ठीक है। तो ये जो होता है एनिमी प्रॉपर्टी वो मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द कस्टडी ऑफ अ इंडियन प्रॉपर्टी फॉर इंडिया। तो ये हम देखते हैं कि कस्टडी प्रॉपर्टी ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया क्या होता है। जो कस्टडी ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया इज एन इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दैट इज एम्पावर टू अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी अंडर द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968। तो जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉपर्टी है उसका जो हैंडलिंग है वो कस्टडी ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया का एक जो डिपार्टमेंट है वो अंडरटुक करता है, ठीक है। उसके बाद तास्केंट जो डिक्लेरेशन हुआ था ऑफ January 10, 1966 include a clause that say that India and Pakistan will discuss the return of the property and asset taken over by either side in connection with the conflict, ठीक है। तो जो डिक्लेरेशन हुआ था 1966 में उनमें क्लॉज था कि जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेटेड जो प्रॉपर्टी रिलेटेड जो इश्यूज़ है ऑफ दैट एनिमी प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू तो वो दोनों जो कंट्रीज़ है वो रिटर्न मतलब वो खुद दोनों डिस्कस करेंगे उस पर, ठीक है। हाउएवर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिस्पोज ऑल ऑफ सच प्रॉपर्टी इन देयर कंट्री। उन्होंने पहले ही डिस्पोज कर दिए वो सारे प्रॉपर्टी इन देयर कंट्री इन 1971, ठीक है। हाउ डिड इंडिया डील विद द एनिमी प्रॉपर्टी। अगर इंडिया कैसे डील करते तो एनिमी प्रॉपर्टी जो एक्ट है 1968 के अकॉर्डिंग जो एनिमी प्रॉपर्टी को इंडिया डील करती है और वो है गवर्नमेंट जो एक डिपार्टमेंट है कस्टडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी वो हैंडल करता है, ठीक है। तो जो एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन बिल फॉर वैलिडेशन एक्ट 2017, ठीक है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ सैलेंट फीचर्स हैं वो देखेंगे। तो जो उन्होंने जो एनिमी सब्जेक्ट और एनिमी फर्म की डेफिनेशन को एक्सपांड किया है विच इंक्लूड्स दैट द लीगल हेयर एंड सक्सेसर ऑफ एन एनिमी वेदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री विच इज़ नॉट एन एनिमी, ठीक है। तो उन्होंने एक डेफिनेशन ऐसे दी है कि जो लीगल हेयर होता है या सक्सेसर होता है ऑफ दैट एनिमी आइदर ही और शी इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सिटीजन ऑफ कंट्री विच इज़ नॉट एन एनिमी एंड द सक्सीडिंग फॉर्म ऑफ एन एनिमी फॉर्म इन रिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ दैट पार्टनर, ठीक है। उसके साथ साथ जो एनिमी प्रॉपर्टी कंटिन्यूज टू वेस्ट इन द कस्टोडियन इवन इफ द एनिमी और द और एनिमी सब्जेक्ट और एनिमी फर्म cease to be an enemy due to the death, extinction, winding up of business and changing of nationality or that the legal heir or successor is a citizen of India or a citizen of country which is not an enemy, ठीक है। दो पर्सन है इफ़ मतलब जो पर्सन है जो एनिमी सब्जेक्ट है तो ठीक है जो एनिमी फर्म है वो सीज़ हो गई ड्यू टू वेरियस रीज़न। तो उस टाइम पे तो जो लीगल उसका सक्सेसर होगा जो लीगल हेयर होगा उनका तो वो ही इज़ नॉट कंसिडर टू बी द एनिमी, ठीक है। द पावर टू डिस्प्यूज दिस प्रॉपर्टी द कस्टोडियन में डिस्पोज द एनिमी प्रॉपर्टी जो कस्टोडियन होता है वो डिस्पोज करते हैं द एनिमी प्रॉपर्टी, ठीक है, विद द प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद फैक्ट फॉर प्रीलिम्स देखा जाए तो जीरो हावर, ठीक है। जीरो हावर जैसे कि हम जानते हैं जीरो हावर जो होता है वो इमीडिएटली क्वेश्चन हावर के बाद होता है और वो जो जीरो हावर का कंसेप्ट है वो इंडियन पार्लियामेंट ने ही स्टार्ट किया है और बाकी और वो पर्टिकुलरली जो इंडियन पार्लियामेंट बुक में वो रेज नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ग्लेशियर के बारे में दिया है जिस सॉरी मैं इसका नाम प्रोनाउंस नहीं कर रही पर आप
आपको अगर प्रोनाउंसिएशन जानते हो तो आप वो पढ़ लेना, सॉरी फॉर दैट। एंड इट इज़ जो लोकेटेड है ग्लेशियर जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ ग्रीनलैंड, ठीक है। इट इज़ आर्टिक लार्जेस्ट आइस शेल। तो न्यूज़ में ऐसा है कि मासिव चंक ऑफ आइस हैज़ ब्रोकन ऑफ फ्रॉम द आइस शेल बिकॉज ऑफ अ वार्मिंग टेम्परेचर, ठीक है। इन जो ग्रीनलैंड में टेम्परेचर बढ़ने के कारण तो वहाँ पे जो आइस शेल्फ है वो काफ़ी अमाउंट पे मैसिव उसका जो है वो ब्रोकन ऑफ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, ठीक। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है जो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है फॉस्फीन। तो फॉस्फीन इज़ ए फ्लेमेबल गैस जो अर्थ में मिलती है आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जब ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन होता है उसके बाद जो गैस निकलती है, एक फ्लेमेबल गैस है, उसको बोलते हैं फॉस्फीन। ऑन अर्थ दिस गैस इज एसोसिएटेड विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड इट कैन ओनली बी मेड बाय अ लाइफ वेदर ह्यूमन और अ माइक्रोबिम्स। तो अगर कहीं पे लाइफ हो तो ह्यूमन्स और माइक्रोबिम्स से ही ये गैस का जो है वो बनती है, ठीक है, क्योंकि वो ब्रेकडाउन होती है ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। यूज एज ए केमिकल वेपन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे वो फॉस्फीन जो है वो एज अ केमिकल वेपन यूज़ किया था। एंड इट इज़ स्टिल मैन्युफैक्चर एज एग्रीकल्चर फेमिगेंट, ठीक है। एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी उसका यूज़ किया जाता है। अभी न्यूज़ में क्यों है तो फाइंड किया है कि जो प्रेजेंस ऑफ दिस गैस हैज़ बीन ऑब्जर्व ऑन वेनस। तो वेनस में इस गैस का जो प्रेजेंस है वो मिला है, ऐसा करके साइंटिस्ट ने फाउंड किया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि जो वेनस पे है वहाँ पे पॉसिबल द साइन ऑफ अ लाइफ, ठीक है, पॉसिबल है साइन ऑफ अ लाइफ ऑन द वेनस प्लैनेट। इन दिस वे वी कंक्लूड ऑल द टॉपिक फ्रॉम द इनसाइड कंपाइलेशन, ओके। हमने कम्प्लीटली ये जो सारे जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया है। एंड प्लीज़ डू like, comment and subscribe. And along with this there is an announcement that we are going to start one lecture series. Here we are going to cover the जो माइंड मैप होता है फॉर एंटायर लक्ष्मीकांत के पॉलिटी का। सो एंटायर लक्ष्मीकांत पॉलिटी वी आर गोइंग टू कवर इन द फॉर्म ऑफ अ माइंड मैप। एंड as we are going to cover this, so it will be more beneficial to you for the revision during the exam time. I hope आपको ये सब पसंद आया होगा। और for new update please do connect to our channel, like, comment and subscribe. Thank you.